Dear students, today we will discuss about the new chapter Hitler and Nazism. Okay, so first we will focus towards the contents. About the contents, there are so many important subtopics in this chapter. So first I will discuss with you what are the contents is there. So birth of the Weimar Republic means इसके अंडर में आएगा Treaty of Versailles, the effects of the war, political radicalism and economic crisis, the years of depression, इसके अंडर में आएगा defects of Weimar Republic, Hitler's rise to power, the destruction of democracy, under this point police force. Okay, next reconstruction, the Nazi worldview, the racial utopia, youth in Nazi Germany, the Nazi cult of motherhood, the art of propaganda, crimes against humanity, knowledge about the Holocaust. सी इतने जो मैं अभी सब टॉपिक बताई हूँ ना, ये एक 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 करके हम लोग ये सारा वीडियो में डिस्कशन करते जाएंगे और बुक में भी इतना ही कंटेंट्स दिया हुआ है. सो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द इंट्रोडक्शन. This lesson explains the rise of Hitler and his art of propaganda, the areas on which he concentrated to make Germany a world power. यहाँ पे हम लोग को देखना है ये लेसन में हिटलर का पावर कैसा राइज हुआ था एंड इसका जो प्रोपागंडा, आर्ट ऑफ प्रोपागंडा मतलब पूरा जर्मनी को वर्ल्ड पावर बनाने के लिए जो तरीका जो है कैसा कंसेंट्रेट किया था जर्मनी को वर्ल्ड पावर बनाने में, इसके बारे में ये पूरा होल चैप्टर में हम लोग को पढ़ना है. So this is the introduction. So first introduction we will start directly birth of the Weimar Republic. Germany fought the First World War along with the Austrian Empire and against the Allies. Allies means Allies countries were there, England, France and Russia. So First World War started 1914 to 1918 along with the Austrian Empire. German also there. So Germany initially made gains by occupying France and Belgium. देखो जर्मनी था एक्सिस पावर में, एलाइज पावर में था इंग्लैंड, फ्रांस एंड रशिया मींस यूके, यूएसएसआर एंड फ्रांस. Allies owned defeating Germany and the Central Powers in 1918. Allies पावर जो है वो मतलब डिफीटिंग किया था जर्मनी को, मतलब एलाइज पावर ही जीता था बोल के यहाँ पे दिखा जाता है. सेंट्रल पावर्स बना था उसके बाद 1918 में. ऐसा तो वर्ल्ड वॉर में आफ्टर द एग्रीमेंट द वर्ल्ड विल बी कंप्लीटेड. सो ड्यूरिंग द टाइम एलाइज पावर ओन द बैटल एंड यहाँ पे देखो कौन कौन सा एलाइड पावर है और कौन कौन सा सेंट्रल पावर है. सेंट्रल पावर मतलब ये कलर में जो जो है जर्मनी, ऑस्ट्रिया हंगरी, बुल्गारिया, ओटोमन एम्पायर. देन एलाइड फोर्सेस में Great Britain, France, Belgium, Russia. Okay, so according to the color wise, you can see that you can know about the Allied forces and the central powers. Like that, two parties divided to means so many categories. Means some important countries were there in one side and another countries also one side. Like that, opposition parties were made and also the war started. सो एक्सपेंशन ऑफ नाजी पावर 1943 में ये एक मैप है, यहाँ पे नाजी का पावर कहाँ तक एक्सपांड हुआ था यहाँ पे दिया हुआ है. देन द डिफीट ऑफ इंपीरियल जर्मनी गेव एन अपॉर्चुनिटी टू पार्लियामेंटरी पार्टीज टू रिकास्ट जर्मन पॉलिटिक्स. ए नेशनल असेंबली मेट एट Weimar and established a democratic constitution with a federal structure. देखो कि जर्मनी डिफीट होने के बाद इसको फिर भी यहाँ पे एक अपॉर्चुनिटी दिया गया था कि पार्लियामेंटरी पार्टीज बनाया गया था, जर्मनी का पॉलिटिक्स को रिकास्ट किया गया था एंड नेशनल असेंबली जो है Weimar Republic met at Weimar means Weimar is the name of a place and established a democratic constitution with a federal structure. फेडरल स्ट्रक्चर मतलब क्या है, जैसा कि इंडिया इज ए फेडरल कंट्री बोला जाता है या क्वासी फेडरल कंट्री बोला जाता है. मींस फेडरल स्ट्रक्चर मतलब देयर आर स्टेट्स एंड मींस डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ द पावर. लाइक दैट डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन एस्टैब्लिश्ड इन वेमर. Weimar is name of a place. The republic, however, was not received well by its own people because of the terms, its forced terms. मतलब यहाँ पे देखो वेमर रिपब्लिक इट वाज सस्टेन्ड इन इट डेवलप्ड समथिंग एंड अबाउट द मींस कॉमन सिटीजन के ऊपर में क्या किया था, कुछ डेवलप हुआ था क्या जर्मनी का. नाउ विल डिस्कस. ओके सी ये वेमर रिपब्लिक तो एस्टेब्लिश हुआ, उसके बाद ट्रीटी ऑफ वर्साइल्स. व्हाट इज द ट्रीटी ऑफ वर्साइल्स? देखो वेमर रिपब्लिक मतलब यहाँ पे
डेवलप किया था या ये कुछ कॉमन पीपल के लिए कुछ काम किया था या जर्मनी को एक तो वर्ल्ड पावर बनाया था कि नहीं, इसको हम लोग को नेक्स्ट स्लाइड में डिस्कशन करना है अबाउट द वेमर रिपब्लिक. इट इज ऑल्सो वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर. सो नाउ we will see about the Treaty of Versailles. Treaty of Versailles में German lost its overseas colonies a tenth of its population, means 10% population को उसको हराना पड़ा. 13% of its territories, मतलब टेरिटोरीज का भी 13% उसको देना पड़ा. 75 of its iron, मतलब सोचो यहाँ पे कितने प्रचुर मात्रा में नेचुरल रिसोर्सेज को भी उसको खोना पड़ा. एंड 26% ऑफ इट्स कोल टू फ्रांस, पोलैंड, डेनमार्क एंड लिथुआनिया. इतने जगह को 75% आयरन, 26% कोल भी उसको देना पड़ा. टू वीकन इट्स पावर द एलाइड पावर्स डीमिलिटराइज्ड जर्मनी. इसके बाद जर्मनी को डीमिलिटराइज्ड कर दिया गया था, मतलब मिलिट्री जो पावर है जो ये भी कम हो गया था, कम कर दिया गया था, वीक कर दिया गया था. ये ट्रीटी ऑफ वर्साइल, मतलब इसीलिए जर्मनी को बहुत कुछ खोना पड़ा, इसीलिए जर्मनी के लिए ये एक तो इंसल्टिंग ट्रीटी था. The war guilt clause forced Germany to pay compensation amounting to 6 billion. मतलब वार में हारने के बाद भी उसको 6 बिलियन जो कंपेंसेशन अमाउंट है उसको भी देना पड़ा. The resource rich Rhineland was occupied by the Allied armies for much of the 1920. मतलब यहाँ पे 1920 में राइनलैंड जो है प्रचुर मात्रा में नेचुरल रिसोर्सेस भरा होने वाला एक जगह, ये भी ऑक्युपाइड हो गया था एलाइड आर्मीज के माध्यम से जर्मन का. तो सोचो यहाँ पे जर्मन का कितना कुछ खोना पड़ा था ट्रीटी ऑफ वर्साइल के कारण से. Then the effects of the war. The war had a devastating impact on the entire continent, both physically, means psychologically and financially. Psychologically and financially both part. मैं बताई थी वर्ल्ड वार में हारने से या जीतने से कुछ मतलब पावरफुल नहीं माना जाता है. यहाँ पे साइकोलॉजिकली एंड फाइनेंशियली हर कोई मतलब यहाँ पे टॉर्चर होते हैं और डिवास्टिंग इम्पैक्ट भी पड़ता है वार का. सो फ्रॉम बीइंग ए क्रेडिटर यूरोप बिकेम ए डेब्टर. तो इसके बाद यहाँ पे यूरोप एक डेब्टर बन गया था. द सपोर्टर्स ऑफ द वेमर रिपब्लिक वर क्रिटिसाइज्ड. जो लोग वेमर रिपब्लिक को सपोर्ट करने लगे उसको वेमर रिपब्लिक लोग क्रिटिसाइज भी हुए. सोल्जर्स केम टू बी प्लेस्ड अबव सिविलियंस. एग्रेसिव वार प्रोपागेंडा एंड नेशनल ऑनर बिकेम इंपोर्टेंट. यहाँ पे सोल्जर केम टू बी प्लेस्ड अबव सिविलियंस. ओके, मतलब जर्मनी में हिटलर आने के बाद ओनली सोल्जर्स को ही इंपॉर्टेंस दिया गया था, आर्मी के ऊपर में, मिलिट्री कैंपेन के ऊपर में ही फोर्स डाला गया था. एग्रेसिव वार प्रोपागेंडा, देखो यहाँ तक अभी हिटलर के बारे में हम लोग नहीं पढ़े, मींस बिफोर enter the Hitler, what about the Germany, what was the condition of Germany, we are discussing about that. Aggressive war propaganda and national honor became important and the fragile democracy could not survive and lead to instability in Europe. मतलब यहाँ पे जो डेमोक्रेसी था, जो मतलब वेमर रिपब्लिक बना के कुछ डेमोक्रेटिक सिस्टम को लागू करने के लिए सोचा गया था, इट कुड नॉट सर्वाइव, क्योंकि ना यहाँ पे कुछ भी फायदा नहीं हुआ जर्मनी को, एंड लीड टू इनस्टेबिलिटी इन यूरोप. देन political radicalism and economic crisis. About that we will discuss in the next period. Listen, till then means only here, till here means about the Hitler and about the Nazism not started, means introduction part, what is the Weimar Republic and also what is the First World War effect, किसके ऊपर में क्या मतलब प्रभाव पड़ा था, इसके ऊपर में ही यहाँ पे दिया हुआ है इतना स्लाइड में. So today we will discuss, it means that much only discussed, and I think you will write all the points in your copy. And next period means next slide, next video I will send you about the political radicalism and economic crisis. Economic crisis क्या हुआ and how means how Hitler entered in Germany and started the Nazi party. Okay, so till then, thank you.